जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 9th बुक फिजिक्स चैप्टर 1 से लेके 9 तक। आज इस चैप्टर में आपसे पूरी बुक के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले चैप्टर से लेके फिजिकल क्वांटिटी से लेके ट्रांसफर ऑफ हीट तक। पहला चैप्टर है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। इसकी पहली डेफिनेशन है हमारे पास डिफाइन फिजिक्स। इसकी डेफिनेशन यहाँ से ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। ठीक है, ये डेफिनेशन है। इसकी फर्स्ट डेफिनेशन। आगे डेफिनेशन है हमारे पास फिजिकल साइंस में स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। और हमारे पास है बायोलॉजिकल साइंस स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये एमसीक्यूज के तौर पर इम्पोर्टेंट है। आगे डिफाइन नेचुरल फिलोसफी, यहाँ से स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, नीचे हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है सारी। यहाँ से इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स causes and effects, heat, it deal with the nature of heat, modes of transfer and effect of heat, sound की, it deal with the physical aspect of sound waves and their production properties and applications, right? It is the study of physical aspects of light, its property, working and use for optical instrument, electricity and magnetism. It is the study of the chain charts at rest and in motion, their effect and the relationship with magnetism. Atomic physics. It is the study of the structure and property of atoms. Nuclear physics. It deals with the property and behavior of nuclei and particle within the nuclei. Plasma physics. It is the study of production property of the ionic state of matter and fourth state of matter. Geophysics. It is the study of internal structure of the earth. ठीक है, आगे हम अगली डेफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटी। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटी आर द क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच अदर क्वांटिटी आर एक्सपायर्ड। द क्वांटिटी दैट एक्सपायर्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी। यहाँ से लगी यहाँ तक। अगर बेस यूनिट दैट यूज फॉर बेस क्वांटिटी इज कॉल्ड बेस यूनिट। यहाँ तक। अगर ड्राइव यूनिट दैट यूज फॉर ड्राइव क्वांटिटी इज कॉल्ड ड्राइव यूनिट। आगे प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड और लेटर एडेड बिफोर और ऐसा यूनिट इज कॉल्ड किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। आगे scientific notation. In scientific notation, a number expired as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10। यहाँ तक ये पूरी। आगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन है यहाँ से। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम, etc। आगे द मीटर रूल। A meter rule is the length measuring instrument. It is commonly used in laboratories to measure length of an object or distance between 2 points. Is the one long which is equal of 100 centimeters. Each centimeter is divided into 10 small divisions called millimeter. Thus, 1 millimeter is smallest reading that can be taken using a meter rule and is called the least count। आगे नीचे है हमारे पास measuring tape। यहाँ से the measuring tape are used to measure length in meter and centimeter figure। आगे show a measuring tape used by blacksmith and capacity of measuring tape consists of tin and long tip of cotton, metal, plastic, generally 10 meter
20 meter, 50 meter, 100 meter long measuring tape are made in centimeter as well as in inch. यहाँ से लेके यहाँ से इसकी डेफिनेशन होगी। आगे मेरे पास है वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन। यहाँ से the difference between one small division on main scale division and one vertical scale division is 0.1 millimeter। और ये इसका फार्मूला यहाँ तक ये करने हैं, ठीक है। आगे जीरो की डेफिनेशन है, ये पूरी यहाँ से लेके इतनी करनी है। उसके बाद है हमारे पास स्क्यू गाज की यहाँ से लेके वर्नियर कैलिपर तक, जीरो की यहाँ से लेकर डायरेक्शन तक, और stopwatch mechanical difference between mechanical stopwatch and digital stopwatch. A mechanical stopwatch can measure a time interval of a minimum 0.1 second. Digital stopwatch commonly used in laboratories can measure a time interval small as 100 second is 0.01 second. आगे हमारे पास साइंटिफिक फिगर है, यहाँ आपने पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कर दी है, यहाँ तक टेप्स तक। आगे इसके बाद चैप्टर खत्म हो गया, अगला दूसरा चैप्टर करते हैं। दूसरा चैप्टर है काइनेमैटिक्स। मेरे काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन यहाँ से, काइनेमैटिक्स स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कशन द कॉजेज ऑफ इट्स मोशन, यहाँ तक मोशन तक। आगे हमारे पास है रेस्ट एंड मोशन। मेरी डेफिनेशन है रेस्ट की, a body side to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding। आगे मोशन की, a body side to be in motion if it changes position with respect to its surrounding। आगे type of motion define two types of motion। ये इसकी तीन types है, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, आपने दो लिखनी है। ट्रांसलेटरी डेफिनेशन है, in translation motion a body moves along a line with the rotation, the line may be straight or curved। ये पिंक बॉक्स पूरा। आगे स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। रैंडम मोशन, the disordered regular motion of an object is called random motion। the springing motion of a body about its axis is called its rotatory motion। ये इंपॉर्टेंट है। आगे वाइब्रेटरी मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टू एंड फोर मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस means position is now as वाइब्रेटरी मोशन। अगली हमारे पास डेफिनेशन है स्केलर वेक्टर की, ये दोनों डिफरेंस बिटवीन। उसके बाद यहाँ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद है हमारे पास डिफरेंस यूनिफॉर्म स्पीड और इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन, और एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की डेफिनेशन, ये निशान है यहाँ पे। और ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन ऑफ लिविंग फाइनल बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ठीक है, अगला तीसरा चैप्टर डायनामिक्स। पहले डायनामिक्स की डेफिनेशन यहाँ से लेके इतनी है, the branch of mechanics that deal with the study of motion of an object and the causes of its motion का डायनामिक्स। आगे फोर्स की डेफिनेशन है, इनर्शिया की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। इनर्शिया ऑफ बॉडी इज इस प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट और रेस्ट और मोशन। आगे मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। आगे नीचे हमारे पास है डेफिनेशन नेट फोर्स की। नेट फोर्स इज a resultant of all the forces acting a body। आगे नीचे है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहाँ से ए बॉडी कंटिन्यूस स्टेट और रेस्ट और मोशन, रेस्ट और ऑफ मोशन इनिशियल लाइन पर बॉडी नॉन एट फोर्स एक्ट ऑन इट। आगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आगे 1 न्यूटन is the force that produce acceleration of 1 Newton meter as to the body of mass 1 kg। आगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, to every action there is always an equal but opposite reaction।
आगे है हमारे पास फोर्स एंड मूवमेंट की डेफिनेशन यहाँ से। व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन बॉडी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी in the direction in the body and will be equal to the rate of change momentum of the body. आगे है हम law of conservation of momentum. The momentum of an accelerated system two or more than two interacting bodies remain constant. आगे ये छोटी छोटी डेफिनेशन है। कूल्ड वेल्ड की डेफिनेशन है यहाँ से लेके इतनी। उसके बाद हमारे पास है कूल्ड वेल्ड की आ गई, फोर्स और लिमिटेशन की आ गई, और ये सारे इसके कुछ है इसमें। ये एमसीक्यूज है और ये इसकी ये लॉन्ग में भी आ सकता है। आगे ये सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन है। सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स दैट कीप्स द बॉडी मूविंग इन ए साइकिल। ये सेंट्रीपिटल की फोर्स की। आगे अगला है हमारे पास अगला चैप्टर यूनिट 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। पहली डेफिनेशन लाइक पैरेलल फोर्स are the forces that are parallel to each other and have the same direction. Unlike parallel forces definition, like parallel forces are the forces that are parallel but have direction opposite to each other. Addition of forces की definition है यहाँ से a resultant force is a single force that has the same effect as the combined effect of all the forces to be added. For all the forces यहाँ से a resultant force से लेके यहाँ तक टू बी एडिड। आगे है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, स्प्लिटिंग अप ऑफ ए फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्स। आगे है एजेंट बॉडी की डेफिनेशन है, डिस्टेंस लेके एजेंट बॉडी तक। उसके बाद है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है अपने टॉर्क की डेफिनेशन। द टर्निंग फैक्टर ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मूवमेंट ऑफ द फोर्स। आगे मूवमेंट आर्म डेफिनेशन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस रोटेशन एंड द एक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द मूवमेंट आर्म ऑफ द फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्टेंस। आगे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की डेफिनेशन, ए बॉडी इज बैलेंस्ड इज द सम ऑफ क्लॉकवाइज movement and acting on the body is equal to the sum of the anti-clockwise movement. आगे है center of gravity, a point where the whole weight of the body appear to act verified downward is called the center of gravity of a body. आगे कोपल की डेफिनेशन है, a couple is formed by two unlike parallel forces the same magnitude but not along the same line. अगर इक्विलेबल की डेफिनेशन है, a body is said to be equilibrium if no net force act on it. अगली डेफिनेशन, nature of equilibrium, if a body remain in its new position will when distribute from its various positions is said to a state of neutral equilibrium. अगर ग्रेविटेशनल चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशनल, इसमें 3 शॉर्ट हैं और बी पार्ट लॉन्ग है। फिर डेफिनेशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी बॉडी इज यूनिवर्सल अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद which is directly proportional to the product of their masses and massively proportional to the square of the distance between their centers. यहाँ तक होगी। आगे ये फील्ड फोर्स की डेफिनेशन, the gravitational pull of earth acting a body whether the body is in constant with the earth or not is called field force. आगे है in the gravitational field of the earth gravitational force by unit mass is called the gravitational field strength of the earth. ये gravitational field strength की डेफिनेशन। मास ऑफ अर्थ की ये डेफिनेशन ये पूरा है, ये लॉन्ग में ज़्यादातर आता है। आगे है हमारे आर्टिट्यूड की वैल्यू जी से लेके आर्टिट्यूड तक। आगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट यहाँ से लेके एन ऑब्जेक्ट बोल अराउंड द प्लेन
Planet is called satellite. The moon revolves around the earth as moon is nature satellite of the earth. Scientific have sent many objects into space. There are called artificial satellite. आगे है मून की डेफिनेशन. मून is 380,000 kilometers away from the earth. It completed its one evolution around the earth 27.3 days. और यहाँ पे है जीपीएस की ग्लोबल पोजिटिंग सिस्टम से लगे ये जो सा ब्लू बॉक्स है पूरा. आगे चैप्टर 6 शुरू हो गया. 6 में वर्क की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. निशान वर्क की डेफिनेशन. वर्क इज डन की जॉल की. उसके बाद एनर्जी की. ए बॉडी possess energy if it capable to do work. ये काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन. पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन. उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. उसके बाद है हमारे पास साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी की, केमिकल एनर्जी की डेफिनेशन, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी इंपॉर्टेंट है. आगे है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ से लेके यहाँ तक. आगे सोलर हाउस हीटिंग की डेफिनेशन है. ए हीटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एक इलेक्ट्रिक स्टोरेज व डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. यहाँ तक फिर ये डेफिनेशन इसकी सोलर एनर्जी की. आगे है मास एनर्जी इक्वेशन. रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी इज गिवन बाय आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन. यहाँ से ले ये पूरी. ठीक है. आगे एफिशिएंसी की डेफिनेशन और इसका फार्मूला. और आगे पावर की डेफिनेशन और इसका ये फार्मूला. वाट की डेफिनेशन है. और ये नीचे एमसीक्यू कर दो. ये दो एमसीक्यू. ये चैप्टर भी खत्म. यूनिट 7 में ये है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर. ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. उसके बाद प्लाज्मा की डेफिनेशन यहाँ से लगी इतनी, फिर यहाँ से लगी इतनी, फिर डेंसिटी की डेफिनेशन. उसके बाद प्रेशर की डेफिनेशन है 4 सेकंड नॉर्मली से. उसके बाद प्लाज्मा पास्कल लॉ की डेफिनेशन, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ है यहाँ से लेके इतनी. उसके बाद एडमिशन आर्चिमेड प्रिंसिपल, ये पिंक बुक डेफिनेशन. उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग की डेफिनेशन है. उसके बाद इलास्टिसिटी की डेफिनेशन, फिर स्ट्रेस की डेफिनेशन. उसके बाद स्ट्रेन की डेफिनेशन यहाँ से लेके इतनी. फोकस लॉ की डेफिनेशन. आके यंगर मॉडुलस की डेफिनेशन ये आ गई. यूनिट 8 आ गया है. रेड में हीट की डेफिनेशन. ये है अपना टेम्परेचर की, हीट की. उसके बाद ये इंटरनल एनर्जी. फिर ये थर्मल मीटर की डेफिनेशन है, इसकी पॉइंट्स है. उसके बाद ये है फ्रॉम केल्विन, फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन स्केल. और ये फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस स्केल, फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट स्केल. ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है. उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन, हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन. उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फिशन की डेफिनेशन. और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन. और ये इसमें से ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. और तो नहीं है इसमें. आगे ट्रांसफर ऑफ हीट की चैप्टर आ गया. यूनिट 9 लास्ट चैप्टर ट्रांसफर ऑफ हीट. यहाँ से है इसकी अपना हीट की. thermal energy from hot body flow to a cold body in the form of heat. This is called transfer of heat. Transfer of heat definitions के 3 पॉइंट है: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. उसके बाद ये डेफिनेशन अपना कंडक्शन की डेफिनेशन है. उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन. उसके बाद है हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दी एंड, इसकी डेफिनेशन ये नीचे है. जिसको कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर यहाँ से लेके ये पॉइंट्स. इसके आगे कन्वेंशन की डेफिनेशन है. उसके बाद लैंड एंड सी ब्रीज, ये डेफिनेशन आ गई. उसके बाद
थर्मल क्लिपिंग की डेफिनेशन यहाँ से लेके रेडिएशन की डेफिनेशन, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखी है ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन यहाँ से, इट इज रेजिंग टेम्परेचर बिकॉज ऑफ ट्रिपिंग ऑफ हीट एनर्जी बाय ग्रीन हाउस सच एज CO2 इन एटमॉस्फेरिक। आगे ये भी चैप्टर खत्म हो गया है और आगे आपके MCQs वगैरह है, ये आपकी फुल बुक खत्म हो गई है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें जल्दी और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।